Hello everyone, this is Hina and welcome back to my channel. In today's class, we are going to discuss about Article 32. Article 32 also is our sixth fundamental right. Remedies for enforcement of fundamental rights are given in this article. Remedies for enforcement of fundamental rights means what? अगर कोई भी fundamental right violate होती है, तो उसको enforce कराने के लिए क्या remedies available है, वो Article 32 में दिया गया है. फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें पता है कि these rights are justiciable in nature. Justiciable means if these rights are violated, so the person whose right is violated can go to the court of law and get it enforced. Right? तो आर्टिकल 32 से उन्हें ये राइट मिलती है कि वो अपनी बाकी की जो फंडामेंटल राइट्स है उसको इन्फोर्स करा सकते हैं. वो इन्फोर्स कैसे करा सकते हैं और किस कोर्ट के पास पावर है अंडर दिस आर्टिकल, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट. But before that, we must understand there are few things जिन पे questions आ जाते हैं. सबसे पहले तो इस पे आता है Article 32 is called as heart and soul of the Indian Constitution. Heart and soul of the Indian Constitution by Dr. B.R. Ambedkar. तो ये question कई बार आया है. Who called Article 32 as heart and soul of the Indian Constitution? So answer is B.R. Ambedkar. और इस तरीके से भी पूछ लेते हैं that which part or which article of the Constitution is called as heart and soul of the Indian Constitution by Dr. B.R. Ambedkar. So our answer is Article 32. This article is divided into 4 clauses. So objective paper जो होते हैं, that is MCQ based questions वाले जो हमारे exams होते हैं, उसके लिए ये चारों clauses के बारे में हमें पता होना चाहिए. पॉपुलरली हम आर्टिकल 32 को सिर्फ रिट जुरिस्डिक्शन के साथ एसोसिएट करते हैं और वही सिर्फ 5 रिट्स पढ़ के जाते हैं, जिससे ऑफ कोर्स कई बार क्वेश्चंस आते हैं आपके जितने भी पॉलिटी में, जिन भी एग्जाम्स में पॉलिटी आती है तो उसमें आर्टिकल 32 से क्वेश्चन आता है और रिट्स से स्पेशली. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन 4 क्लॉजेस में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस दैट एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द 5 रिट्स. फर्स्ट, the right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed. This word is very important. Supreme Court is known as the guarantor of fundamental rights. So ये क्या मतलब है? Guarantee is nothing if no one has the responsibility. So Supreme Court के ऊपर responsibility यहाँ पे डाली गई है, या फिर हम कह सकते हैं empower किया गया है Supreme Court को कि वो जो इस पार्ट में, दैट मीन्स पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दी है उनको प्रोटेक्ट करें. सो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू डू दैट. सेकंड सब क्लॉज, नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर, बट व्हाट सुप्रीम कोर्ट कैन डू? द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स. एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है that Supreme Court have power to issue A directions, B directions or orders, C directions or orders or writs. So objective paper ke liye it's very important for you to understand that you have to learn all these points. Supreme Court not only has power to issue writs, but it can also issue directions or orders. Writs are also kind of orders only, but they are specific to enforcement of rights, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari. These are 5 writs which Supreme Court can issue to enforce fundamental rights. ये जो words हमने अभी पढ़े हैं ये सारे Latin में हैं. इनके क्या मतलब हैं we'll discuss in a while. Whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part. यानी ये जो 5 writs हैं ये आपको issue करनी है according to the राइट. कौन सी राइट वायलेट हुई है उसके अकॉर्डिंगली कौन सी रिट अप्रोप्रिएट होगी, दैट रिट विल बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट. सो फर्स्ट क्लॉज में हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट इज empowered to do empowered to enforce the fundamental rights. It is the guarantor of fundamental rights. कहां से हम ये चीज कंफर्म करते हैं? आर्टिकल 32 में ये दिया हुआ है. सब क्लॉज 2 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है उसमें वो क्या क्या चीजें इशू कर सकता है? डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स. 5 टाइप की रिट्स इशू कर सकता है. थर्ड सब क्लॉज कहता है without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clause 1 and clause 2. यानी ये जो 2 पावर सुप्रीम कोर्ट को दी हैं इनको नहीं ले सकते, यानी ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास रहेंगे,
But Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause 2. यानी कि यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि अगर वो किसी और कोर्ट को भी empower करना चाहते हैं to issue writs, directions or orders to protect the fundamental rights, then Parliament has power to do that because Article 32 clause 3 empowers Parliament. So this is an important point जो हम लोग मिस कर देते हैं. इस पे भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है. Last, the right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this constitution. यानी आर्टिकल 32 क्लॉज 4 क्लियर कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा दिया है कि ये जो राइट है 32 के अंदर इसको सस्पेंड किया जा सकता है, सिर्फ तभी उसको सस्पेंड कर सकते हैं, अदरवाइज दिस राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड. अब आर्टिकल 359 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को कि वो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो होती है उस राइट को सस्पेंड कर सकते हैं. ऑफ कोर्स जब नेशनल इमरजेंसी लगी होगी तब. अदरवाइज इवन प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, no one has the power to suspend this right. Okay, so article 32 is of course यहाँ पे writ jurisdiction के बारे में बात की गई है and which is important from all the point of view. But knowing about all these points is also very important for because हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें हम बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको मिस कर देते हैं. तो ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं from your examination point of view. Now let's discuss about the 5 writs. Habeas corpus, mandamus, quo warranto, prohibition, certiorari. These are 5 writs. These are Latin words. सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है इनको इशू करने की. एक कोई भी अगर आपकी राइट वायलेट होती है तो उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट रिट इशू हो जाएगी. Now let's discuss them one by one. सबसे पहले हेबियस कॉर्पस. हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी. ओके, तो ये ट्रांसलेशन ये भी आ सकती है एग्जाम में. इसको इशू किया जा सकता है अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज नॉन स्टेट, दैट इज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी इसको इशू किया जा सकता है. आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. और उसमें लिखा हुआ है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ or personal liberty except according to the procedure established by law. यानी कि अगर आप किसी की लिबर्टी ले रहे हैं, किसी को कन्फाइन कर रहे हैं, तो वो लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए. अगर वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो क्या है, वो इलीगल डिटेंशन है. ठीक है, तो किसी का इलीगल डिटेंशन अगर होता है तो यानी उसकी आर्टिकल 21 में जो दी गई राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो वायलेट हो रही है. सो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है हेबियस कॉर्पस की. स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट में आपके 3 ऑर्गन्स आते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. ये रिट इन तीनों अथॉरिटीज के अगेंस्ट इशू हो सकती है. ओके, so this is first point. Second, it can also be issued against non-state or private individuals. अगर कोई private individual है which is not part of the government और उसने किसी को legally detain किया हुआ है, so habeas corpus की writ issue कराई जा सकती है. Next is mandamus. Mandamus का मतलब है to command. Command का क्या है? To show authority. यानी अगर आप किसी को command कर रहे हैं तो आप उसको कुछ ऐसी चीज करने के लिए कह रहे हैं which that person is authorized to do. It is issued against executive. Executive यानी जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट इसको इशू किया जाता है. मान लीजिए कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और जो पासपोर्ट अथॉरिटीज हैं आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट है, यू हैव सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग इज राइट, एंड स्टिल जो पासपोर्ट अथॉरिटीज हैं वो आपका पासपोर्ट इशू नहीं कर रही हैं, तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और मैंडेमस की रिट इशू करा सकते हैं. एंड सुप्रीम कोर्ट विल कमांड द अथॉरिटीज टू इशू योर पासपोर्ट. यहाँ पे अब कैच ये है कि ये जरूरी है आपके लिए याद रखना कि ये जो रिट है मैंडेमस की,
it is issued against the executive, it is issued against the public authorities. Next is quo warranto. quo warranto में क्या होता है, इसका मतलब है by what authority, यानी कि यहाँ पे आपने कोई जो पब्लिक अथॉरिटी है उसने अपनी जो पावर है उसके बाहर जाकर कोई काम किया, तो ये रिट कब इशू होती है, जब कोई अथॉरिटी अपनी पावर को एक्सीड कर देती है। लेकिन एग्जीक्यूटिव्स, ऑल द पब्लिक अथॉरिटीज, जब वो अपनी पावर को एक्सीड कर देते हैं तो कोर्ट आपसे पूछती है कि आपने किस अथॉरिटी से डिसीजन लिया है। ऐसा करने के लिए रिट कौन सी इशू होगी, quo warranto। तो आपने समझना है मैंडेमस में क्या होता है, कमांड करते हैं, यानी जो पब्लिक अथॉरिटी थी वो अपना काम नहीं कर रही है तो रिट इशू की जाती है और उसको कमांड किया जाता है टू डू द वर्क। इन quo warranto आपसे आपकी अथॉरिटी पूछी जाती है, यानी यहाँ पे आपने जो डिसीजन लिया है वो ये कोड आपसे पूछेगी कि आपने किस अथॉरिटी से वो डिसीजन लिया है, वेदर यू आर empowered टू डू दैट और नॉट, तो वो quo warranto की रिट इशू करेंगे। नेक्स्ट इज सर्श्योररी। सर्श्योररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, और इसे इशू किया जाता है अगेंस्ट लोअर जुडिशरी। ठीक है, सो पर्टिकुलरली ये आपने याद रखना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैंडेमस की जो रिट थी और quo warranto की जो रिट थी वो इशू की जाती थी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव, बट सर्श्योररी इज अ रिट व्हिच इज इशूड अगेंस्ट लोअर जुडिशरी। कब, अगर लोअर जुडिशरी अपना जो जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सीड करे तो। ठीक है, जुरिस्डिक्शन क्या होता है, जुरिस्डिक्शन होता है एरिया ऑफ पावर। ठीक है, जो आपका पावर है जिस एरिया तक एप्लीकेबल है उसको हम जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। तो अगर लोअर जुडिशरी अपनी पावर को एक्सीड करती है और अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करती है और कोई डिसीजन देती है तो सर्श्योररी की रिट इशू की जाती है। अब मान लीजिए एक कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ इतना है, इस बॉक्स जितना, लेकिन उसने एक केस ले लिया है जो कि इस एरिया में फॉल करता है, तो यानी उन्होंने अपना जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड याद रखना जरूरी है कि एक्सीड हो गया है, जुरिस्डिक्शन एक्सीड हो गया है। तो अब जो भी पार्टी है, जो भी अग्रीव्ड पार्टी है जिसकी राइट्स वायलेट हुई हैं, वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है अंडर आर्टिकल 32, तो सुप्रीम कोर्ट कैन डू टू थिंग्स। सुप्रीम कोर्ट या तो उस केस को ट्रांसफर कर देगी या जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको क्वॉश कर देगी। सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि भाई जो जुरिस्डिक्शन है वो सच में एक्सीड हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर वो एक्सीड हो गया होगा तो जो प्रोसीडिंग्स हैं जो लोअर कोर्ट में अभी तक काम हुआ था उसको वो क्वॉश कर देगी। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सर्श्योररी में क्या होता है, डिसीजन प्रोसीडिंग्स क्वॉश हो जाती हैं, या इसको उल्टे तरीके से भी पूछ सकते हैं, अंडर व्हिच रिट प्रोसीडिंग्स आर क्वॉश्ड, सो अंडर सर्श्योररी। व्हाई, बिकॉज आप उन्हीं चीजों को क्वॉश कर सकते हैं ना जो शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सीड हो गया है तो प्रोसीडिंग्स विल बी क्वॉश्ड। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है टू प्रोहिबिट, और प्रोहिबिट आप किसी चीज को पहले कर सकते हैं, राइट। प्रोहिबिशन का जो लिटरल मीनिंग है उसमें क्या होता है कि किसी को रोकना, और रोकते आप पहले हैं। दिस इज ऑल्सो इशूड अगेंस्ट लोअर जुडिशरी। लेकिन यहाँ पे टू प्रिवेंट द कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। ओके, मैंने क्या बोला, प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, तो आप किसी को पहले रोक सकते हैं। यानी कि अगर किसी कोर्ट ने अभी अपना जुरिस्डिक्शन एक्सीड नहीं किया है मगर करने वाला है, तो कौन सी रिट इशू होगी, प्रोहिबिशन की रिट इशू होगी। लेकिन जुरिस्डिक्शन अगर एक्सीड कर दिया है तो सर्श्योररी की रिट इशू होगी। ठीक है, नेक्स्ट, रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो दो कोर्ट्स के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन इज गिवन अंडर आर्टिकल 32। हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन इज गिवन अंडर आर्टिकल 226। बट जो सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है, यानी जो आर्टिकल 32 में दिया है, इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, इट इज द 6th फंडामेंटल राइट। बट जो हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 226, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो
ये पॉइंट आपको एक याद रखना है। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो आर्टिकल 32 में जो दिया है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होती हैं तो ही इन्वोक किया जा सकता है। बट हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन कैन बी इन्वोक्ड इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज एनी अदर पर्पस और लीगल राइट्स। तो यहाँ से हमें क्या पता चला that High Court's writ jurisdiction is wider than Supreme Court's writ jurisdiction. Why? Because Supreme Court can only issue writs if there is violation of fundamental rights, but High Court can issue writs in case of violation of fundamental rights as well as if any legal right is also violated. But एक आर्टिकल है, आर्टिकल 139 आर्टिकल, इस आर्टिकल में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर सकती है। यानी फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक एप्लीकेबल है, बट पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 139 एंड इट कैन एक्सटेंड दिस जुरिस्डिक्शन। यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी और राइट्स में भी, किन्हीं और एरियाज में भी सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर सकती है। So this article is also important. Exams में इससे भी क्वेश्चन आया है, तो ये भी आपको याद रखना है। Okay. Now let's do it again. Just revise these points. Habeas corpus is to have the body, और ये कब इशू होती है जब illegal detention होता है. It can be issued against state as well as non-state. You read mandamus and quo warranto together. ठीक है, अगर आप इनको एक साथ पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंडेमस और quo warranto दोनों ही एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट इशू होती हैं। मैंडेमस में हम कमांड करते हैं टू डू समथिंग, और quo warranto में कोर्ट क्या कहती है, पूछती है आपने किस अथॉरिटी से डिसीजन लिया। सर्शोररी एंड प्रोहिबिशन, इफ यू रीड टुगेदर आपको इनके डिफरेंस समझ में आएगा और इजीली याद हो जाएगा। दोनों ही लोअर जुडिशरी के अगेंस्ट इशू होती हैं, और सर्शोररी कब इशू होती है, जब जुरिस्डिक्शन एक्सीड हो जाए, तो प्रोसीडिंग्स को क्वॉश करने के लिए हम ये रिट इशू करते हैं। प्रोहिबिशन की रिट इशू होती है जब जुरिस्डिक्शन एक्सीड होने वाला है, हुआ नहीं। ओके, एंड आर्टिकल 32 empowers Supreme Court and article 226 empowers High Court. Thank you so much for watching, and for more such videos please subscribe to my channel.